Good evening. Welcome to the special series of Monday Mornings, Motivational Mornings with Mrinali. Today we are going to have our first episode of this Monday. The episode is, of course, special since it is the first one and we are going to attempt the series. Let's see how long it goes. So, today on the dais, we have Mr. Sandeep Mukherjee as our chief guest. Welcome, Sandeep. And virtually offline, we have so many other well wishers with us. So, let's take the blessings of Almighty, the blessings of all our well wishers, elderly people, Advocate Varsha Madgulkar ma'am, Shirish sir, Bhairavi ji, Shreya ji, Vaishnavi ji, Siddhi ji, and let's begin with the today's special session with Sandeep Mukherjee. So, just to give you in brief, Sandeep Mukherjee is a spiritual wellness healer and internationally certified life and happiness coach. He is recognized as top 25 coaches by an USA organization. He works with men, women, children and help them to overcome their life and health related difficulties through spirituality. तो अभी मैंने जो भी इंट्रोडक्शन दी तो वो संदीप को जानने के लिए बहुत थोड़ी है. सो यू विल मीट संदीप via his words and via his speech in the coming episodes of Monday Motivation. तो हमारी आज की थीम है लव. So when we say love, there are so many things going on in our mind. एक तो already the month of love is passing on. It's the month of Feb. So from 7th वो messages, वो वाली feelings चालू हो जाएगी. Rose day, propose day, chocolate day, teddy day, and it will end with the Valentine day. So when we are celebrating all these days in the month of Feb, we cannot forget the other side of the love between your parents, love between parents and their kids. You and your Almighty, you and nature, love with yourself. So ये बहुत सारी बातें हैं. राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है, किसी ने और बहुत खूब कहा है. Love has nothing to do with what you are expecting to get, only with what you are expecting to give, which is everything. So without any further ado, without any making late, now I would like to invite Mr. Sandeep for today's talk. Welcome, Sandeep. So Thank you, Pranali. yeah, it's Yeah. our pleasure to have you here. So जैसे कि हम जानते हैं कि आज की थीम लव है, तो लव एज अ कॉमन ह्यूमन लेमैन हम सब ने अलग अलग जाना है. I would like to know what is love according to you as a spiritual healer. So over to you. सो थैंक यू मृणाली. आपने जो क्वेश्चन किया, सबसे पहले आपने जो भी शेयर किया वो बहुत ही ब्यूटीफुल था अबाउट लव. थैंक यू वेरी मच. तो लव की डेफिनेशन जो है वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, सबके नज़रिए से अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है. तो मैं जो मुझे समझ में आया मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा, आपके द्वारा आपके सारे जो ऑडियंस है उनसे वो शेयर करना चाहूँगा. शायद कुछ लोग रेजोनेट करें या ना करें, बट इट इज माय पर्सपेक्टिव. मुझे लगता है कि लव एक बहुत ही पावरफुल माइटी फोर्स है यूनिवर्स का, जिसके थ्रू आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप खुद कभी नहीं सोच पाएंगे करने की अगर आप उस लव में नहीं हो तो. जब मैं क्रिएशन के बारे में सोचता हूँ, जब मैं यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ, जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, जब हम उनको देखते हैं, जब ट्री है, नेचर है, सारी क्रिएशंस है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो सारे स्पेस में कंटिन्यूअसली एक इम्प्रूवमेंट है, एक इवोल्यूशन है, एक जर्नी है. बट वो इवोल्यूशन, वो जर्नी जो भी हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है क्रिएट करने की, मुझे लगता है वो लव है. तो
जो यूनिवर्स ने सबसे पहले, अगर आप देखते हैं, लोग बोलते हैं कि 84 lakhs टाइप ऑफ स्पीसीज होती है, उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग बने हैं। तो क्या वजह रही हुई हुई होगी जिसकी वजह से डिवाइन ने भी इतने सारी क्रिएशन की? क्योंकि हर क्रिएशन में उन्होंने ये देखा कि जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसे मैं कितना प्यार कर रहा हूँ और वो मुझे कितना प्यार कर रहा है। सो लव इज ऑल अबाउट, इट्स अ माइटी फोर्स। वो जो डिवाइन का जो फोर्स है, इट इज अ माइटी फोर्स विच कैन मेक यू डू थिंग्स विच यू विल नॉट डू when you are not in love. So I think that is my definition of love. ट्रूली सेड। इसीलिए आई गेस बहुत बार ऐसे होता है, वी आर सो मच टायर्ड कि ऐसे लगता है बस जाए और बेड पे सो जाए, बट सडनली योर किड विल कम, मम्मा भूख लगी है कुछ जल्दी से बना दो, एंड वी वो एनर्जी जो है या जो है, वी गेट बैक इन टू दैट जोन, वी कम आउट ऑफ अवर टायर्डनेस एंड लेजीनेस, एंड फॉर दैट लव वी अगेन कुक समथिंग. So, yes, truly justified. Thank you for this wonderful answer. Thank you. तो आजकल डिवाइन लव एक या डिवाइन डिविनिटी ये बहुत ज्यादा चर्चित है. सो आई वुड लाइक टू हैव योर थॉट्स ऑन divine love. What is actually divine love? Does it really exist for everybody? And is everyone aware of that divine love? Over to you. Thank you. So I don't know how much people are aware and ready to know what is divine love. लोगों को लगता है कि जब वो किसी से प्यार में होते हैं, किसी के साथ, और एक ब्लिस फील करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसको उस पॉइंट पे वो डिवाइन लव फील होता है। बट एक्चुअली में डिवाइन लव जो है, आई फील इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन मोमेंट्स ऑफ लाइफ. Divine love is in everything which you do, everything which you see around you. जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो आपके लाइफ फॉर्म में, आप अगर जो जो एनर्जी, जो जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हो, इन एंड आउट करते हो, वो ऑक्सीजन आपको मिले, और उसकी वजह से कितने ट्रीज काम कर रहे हैं, कितने प्लांट्स काम कर रहे हैं, मदर नेचर काम कर रही है, तो वो सारे सिंक्रोनिसिटी में काम कर रहे हैं ताकि आपको वो ऑक्सीजन मिले. That is divine love. Where there is no foundation of time, it is just an expression of making sure that you breathe. आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो सब में कोई लिमिटेशन नहीं है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. It's just that the divine wants you to breathe. The divine wants you to experience that love flowing within you. वो जो हम प्राणा ले रहे हैं, that is also an expression of love. जो हमको जो अनाज मिलता है, जो फार्मर्स इतने धूप में काम करते हैं, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मोस्ट मेजर मोटिवेशन? इट्स नॉट द मोटिवेशन ऑफ मनी. मनी आपको एक हद तक ही सिर्फ मोटिवेट कर पाएगा, बट इट इज द मोटिवेशन दैट बिकॉज ऑफ मी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू हैव फूड. दैट इज देयर डीपेस्ट मोटिवेशन. दैट इज लव. दैट इज डिवाइन लव. डिवाइन लव does not have any definition. कोई specific definition नहीं है. It is that unconditional way of doing things for anybody and everybody without having any expectations or any judgment कि मैं उसको इतना प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन इन रिटर्न मुझे वो नहीं मिल रहा. तुम सोचो, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, कितने लोग उस ऑक्सीजन का एक्चुअली में थैंक यू करते होंगे? कितने लोग उस ऑक्सीजन को जो ब्रीथ कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होंगे? नहीं कर रहे. बट क्या इसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना बंद कर रहा है? वो ट्रीज, वो प्लांट्स अपने जो 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 लव देना है, क्या वो बंद कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे. बिकॉज वो हमारे लिए सोच रहे हैं. हम उनको क्या दे या ना दे, ये उन्हें मैटर नहीं करता. सो मुझे लगता है कि डिवाइन लव वो चीज है जो आप हर किसी में पा सकते हो, आप हर किसी में देख सकते हो, और आप हर किसी के अंदर उसे आपको आपको मिलने की क्षमता होनी चाहिए, देखने की क्षमता होनी चाहिए, अगर आप सच्ची में डिवाइन को उस लव के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हो. तो डिवाइन लव दोस्त में भी है, दुश्मन में भी है.
आपका जो दुश्मन होगा वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहा है, वो भी आपको पुश ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्यार भी है उसके अंदर। तो सारी चीजों में ही आपको लव दिखेगा अगर आप देखना चाहो तो, जो अनकंडीशनल है, दैट इज डिवाइन लव। आई होप मैंने आपके सवाल का आंसर दे पाया हूँ, मैं जस्टिस कर पाया हूँ आपके सवाल के आंसर को। बिल्कुल। थोड़ी सी चीजें समझने में मुश्किल है क्योंकि जी। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑलवेज टायर्ड विथ एक्सपेक्टेशंस। मैंने इसके लिए ये किया है, तो अ टाइम कम्स व्हेन इवन